अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। स्वात एक्सप्रेस वे पर ट्रक उलट गया। रेस्क्यू हुक्काम का कहना है कि हादसे में 15 अफराद जाँ बहक और 8 जख्मी हो गए हैं। जख्मियों का अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। ट्रक में सवार तमाम अफराद खाना बदोश थे। ताल्लुक स्वात बहरीन से है। जिला इंतजामिया के मुताबिक हादसे में जाँ बहक होने वालों में ज्यादातर बच्चे हैं। मोदी सरकार पर अमरीकी टैरिफ भारी पड़ गया। ट्रंप सरकार के आगे घुटने टेक दिए। रूसी तेल खरीदने से तौबा कर ली। अमरीकी सदर को रूस से तेल ना खरीदने की यकीन दहानी करा दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ओवल ऑफिस में कहा, भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुझे रूस से तेल ना खरीदने की यकीन दहानी कराई है। खुश नहीं था कि भारत रूस से तेल खरीदे, मगर अब मामला तय हो गया है। भारत फौरी तौर पर रूसी तेल की खरीदारी नहीं रोक सकता, लेकिन जल्द ही रोक देगा। चीन के साथ तिजारती जंग जारी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मुझे कहा, आपने लाखों जिंदगियां बचाई हैं। भारत और पाकिस्तान जौहरी जंग के बहुत करीब थे। पाक भारत जंग में 7 तैयारे गिराए गए थे। I was not happy that India was buying oil, and he assured me today that they will not be buying oil from Russia. That's a big stop. Now I got to get China to do the same thing. You know, that is relatively easy compared to what we just did over the last week in the Middle East. Middle East was 3,000 years, and we got it done. This is 3 years, and I think we'll get it done. I want to save lives. I've had 8 wars. The Prime Minister of Pakistan got up the other day, said so beautifully, he says, you saved millions of lives. He told that to a group of people right in this office. He said the president saved millions of lives, and I think what he's referring to is the fact that that would have been with India, nuclear war. That was getting very close. You know, 7 planes, they don't talk about it, but 7 aircraft were shut down. व्हाइट हाउस में वॉल रूम प्रोजेक्ट के इशाइये से खिताब में ट्रंप ने एक बार फिर कहा कि टैरिफ से पाक भारत जंग रोकी। कहा था 200% टैरिफ लगा दूंगा। वजीर आजम पाकिस्तान मुझसे मिले। उन्होंने जज्बाती अंदाज में कहा, मैंने लाखों जिंदगियां बचाई। वजीर आजम पाकिस्तान ने सबके सामने कहा, मैंने 30 लाख, 50 लाख या शायद अनगिनत जिंदगियां बचाई। मुझे जंगे रोकना पसंद है। तिजारत को जंगे रोकने के लिए इस्तेमाल करता हूं। 8 माह में 8 जंगे रोकी, मगर फिर भी नोबेल इनाम नहीं मिला। हो सकता है अगला साल बेहतर हो। We stopped a lot of these wars using trade. We had, as an example, India and Pakistan were going at it really hard. 7 planes were shot down. It was going to happen. Bad things were happening. And I was talking to both of them about trade. And I said, how are we doing with this? Said, sir, we're doing very well. Great. Well, we're not going to do well. We're not going to do a trade deal unless they stop the war. And I got him on the phone, and I said, listen, we're going to put a 200% tariff on your country for any product you sell into the United States unless you stop this war, because I'm not going to be a party to it. You have 2 nuclear nations, by the way. No, you can't do that. I say, I can do that. Very easily I can. We're not going to have to lose millions of people from the planet. And frankly, that dust can blow over here too. It affects everything. It's a powerful, powerful weapon. Too powerful. So powerful you don't want to talk about it. So they said, no. I said, yes. Here's the story. If you're going to go and do it, we're cutting off all negotiations. There'll be no trade with the United States of America. In fact, the Prime Minister of Pakistan came and saw me, and he was emotional about it. And in front of a group of people, he said, this man saved 3 million, 5 million, maybe an untold number of lives. And it was just recently that this happened. So I stopped 8 wars in 8 months. Did I get a Nobel Prize? No. Can you believe it? Even I said, yeah, that's an impossible one. But it's all right. I think next year will be better, but I don't care. You know what I care about? I saved maybe hundreds of millions of lives, but certainly I saved. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा इस्राएली कार्रवाइयों के लिए खबरदार कर दिया। कहा, हमास अगर गजा जंगबंदी बरकरार रखने में नाकाम रहा तो इसराइल दोबारा कार्रवाई कर सकता है। इसराइल चाहे तो हमास को दोबारा सख्त जवाब दे सकता है। फैसला हमास की जानिब से माहिदे की अमलदारी पर मुनहसर है।
हमास का कहना है कि उसने ट्रंप के गजा मंसूबे के तहत इसराइली कैदियों के हवाले से अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर दिया। जिस बात पर इत्तफाक हुआ था उस पर अमल किया है। हमास ने मजीद कहा कि उसने अपने पास मौजूद तमाम जिंदा इसराइली कैदियों और जिन लाशों तक रसाई मुमकिन थी उन्हें हवाले कर दिया है। जहां तक बाकी लाशों का ताल्लुक है तो उनकी तलाश और बाजियाबी के लिए खुसूसी साजो सामान और बड़ी कोशिशों की ज़रूरत है। मामला मुकम्मल तौर पर हल करने की भरपूर कोशिशें जारी हैं। आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं, हुकूमत ने आज से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये 66 पैसे, डीजल की कीमत में 1 रुपये 39 पैसे, मिट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपये 26 पैसे कमी की गई है। पेट्रोल की नई कीमत 263 रुपये 2 पैसे फी लीटर मुकर्रर, डीजल की नई कीमत 275 रुपये 41 पैसे, मिट्टी के तेल की नई कीमत 181 रुपये 71 पैसे और लाइट डीजल ऑयल की नई कीमत 162 रुपये 76 पैसे फी लीटर मुकर्रर। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद अब्दुल्ला अब्दुल अज़ीज़ अल जदान से मुलाकात हुई। वज़ीर ख़ज़ाना ने मुलाकात के दौरान पाकिस्तान में निजी सरमायाकारी के फ़रोग़ पर बात की। कौमी एयरलाइन और हवाई अड्डों की निजकारी पर पेशरफ्त से आगाह किया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर में मनसूबों के लिए सऊदी हिमायत की ख्वाहिश का इजहार किया। IFC और मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी के किरदार पर भी तबादला ख्याल किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अलग अलग मुलाकातें की। सदर और वज़ीर आज़म ने मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने सदर मुमलिकत को अफगान तालिबान की जारहाना और इश्तियाल अंगेज़ कार्रवाइयों से आगाह किया। सदर ने अफगान बॉर्डर पर सरहद पार हमलों का फौरी और पेशा वराना जवाब देने पर पाक फ़ौज की तारीफ़ की और पाक फ़ौज की क़ुव्वत, जुर्रत, सलाहियत और तैयारी पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। इससे पहले एक बयान में सदर मुमलिकत ने कहा कि अफगान तालिबान दहशतगर्दों को महफूज पनागाहें फराहम करके खित्ते के ममालिक के लिए ख़तरा बन रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अफगान तालिबान, फितनाल हिंदुस्तान और फितनाल खवारिज के इश्तियाल अंगेजियों पर तशवीश का इजहार किया। कहा, मुल्की सालमियत का हर सूरत दिफा किया जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अफगानिस्तान के साथ 48 घंटे की जंग बंदी हुई है। मैं नहीं समझता कि ये सीज़ फायर ज़्यादा देर निकल पाएगा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, अफगान तालिबान ने न जाने किस कबाड़ी से टैंक ले लिया और अब झूठ बोल रहे हैं। ऐसा टैंक हमारे पास है ही नहीं। अगर उन्होंने जंग को बढ़ाया तो अपनी पूरी ताकत से जवाब देंगे। वज़ीर दिफा ने कहा कि अफगान तालिबान इस वक्त भारत की प्रॉक्सी बने हुए हैं। तालिबान के फैसले दिल्ली से स्पॉन्सर हो रहे हैं। सदर ट्रंप ने जंगें बंद कराई हैं। अगर वो यहां भी जंग बंद कराना चाहते हैं तो खुशामदीद। 48 घंटे का जो है एक लल जो है वो हुआ है, बड़ा फ्रेजाइल है। कोई मैं नहीं समझता कि ये कोई ज्यादा देर निकाले। ये आई हैव माई डाउट्स कि ये होल्ड करेगा, क्योंकि तालिबान जो है उनके जो फैसले जो है ना वो सारे दिल्ली से स्पॉन्सर हो रहे हैं। इस वक्त काबुल जो है वो दिल्ली की प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है। इस बात का खतरा है कि वो फिर बाकायदा तौर पर तहरीक तालिबान को इस बात के लिए कह रहे हो कि पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयां और शिद्दत के साथ बढ़ाई जाएं। एक्टिवली वो शामिल हो गए हुए हैं ना इस वक्त तो उनके साथ। ये दोनों फ्रेंचाइज जो है एक ही चीज है, इसमें कोई फर्क नहीं है दोनों में। इनका एक ही मंबा है, एक ही सोर्स है। अफगान हुकूमत के तर्जुमान का भी ये कहना कि आपका बतौर वजीर दिफा DGISI और दीगर 2 जर्नल्स की वीज़ों की दरख्वास्तें मुस्तरद की गई हैं मुतादिद बार। ये हॉस्टिलिटीज स्टार्ट होने से पहले, मैं आज से कोई हफ्ता 10 दिन 12 दिन पहले की बात है, तो उस वक्त हमने अप्लाई किया था, लेकिन हमने वीजे नहीं लगवाए। हमने फिर वापस ले लिए क्योंकि हॉस्टिलिटी स्टार्ट हो गई थी, इसलिए वहां पे जाना फजूल था। उनकी कोई नीयत नहीं है कि यहाँ पे हम हो। ट्रंप का कोई किरदार हो सकता है आगे जाके इस सीज फायर को होल्ड कराने में, मामले को आगे बढ़ाने में? मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। पाकिस्तान ने क्या एयरफोर्स को इस्तेमाल करते हुए काबुल तक हमले किए हैं? क्या मिसाइल दागे गए पाकिस्तान की तरफ से? एनी पार्ट ऑफ अफगानिस्तान हमारी इस वक्त जो है कैपेबिलिटी है कि हम उनको अटैक कर सकते हैं और करेंगे। डीप इनसाइड जो है वो हमले हुए हैं इनसाइड अफगानिस्तान। ISPR का कहना है कि भारतीय फौजी क़यादत का मन घड़त और इश्तियाल अंगेज प्रोपेगेंडा दोहराना इंतहाई तशवीशनाक है।
भारतीय फौज के प्रेस रिलीज में तजादात इतने वाज़ेह हैं कि उन्हें जवाब देने के काबिल नहीं समझा जाना चाहिए। एक जौहरी कुव्वत की फौजी क़यादत का सियासी दबाव में गैर जिम्मेदाराना बयान जारी करना अफसोसनाक है। हर जारहती इक़दाम का जवाब तेज़, पुख्ता और भरपूर अंदाज में दिया जाएगा जो आने वाली नस्लें याद रखेंगी। ISPR का एलामिया में कहना है कि इंतहाई तशवीश के साथ नोटिस किया गया है कि मार्का हक के 5 माह बाद बिहार, मगरबी बंगाल के इंतखाबात के पेश नज़र फौजी क़यादत ने वही मन घड़त इश्तियाल अंगेज़ प्रोपेगेंडा दोहराना शुरू कर दिया है। ये प्रोपेगेंडा हर रियासती इंतखाबात से कबल दोहराते हैं। एक जौहरी कुव्वत की फौजी क़यादत का सियासी दबाव में गैर जिम्मेदाराना बयानात जारी करना अफसोसनाक है। भारतीय फौज के प्रेस रिलीज में तजादात इतने वाज़ेह हैं कि उन्हें जवाब देने के काबिल नहीं समझा जाना चाहिए। भारतीय क़यादत अपनी मंशा के मुताबिक बॉलीवुड तर्ज अमल पर बेबुनियाद मनाजिर और तारीख घड़ने की कोशिश कर रही है। ISPR का मजीद कहना है कि ऐसा मालूम होता है कि भारतीय फौज और उसकी सियासी क़यादत मार्का हक की शिकस्त तस्लीम ना कर पाए, इस हकीकत को हज़म ना कर पाई कि उन्हें मार्का हक में फैसला कुन तौर पर शिकस्त हुई। भारत की झूठ के नकाब हो गए। दुनिया अब भारत को सरहद पार दहशतगर्दी का असल चेहरा और इलाकाई अदम इस्तेहकाम का मरकज़ तस्लीम करती है। भारत अपने अवाम और पड़ोसियों के मफाद की मनाफी मुहिम जोई और बालादस्ती की पॉलिसियों पर अटल है। ISPR ने वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान के अवाम और हमारे मुसल्लह अफवाज हर इंच वतन के दिफा के लिए भरपूर सलाहियत और पुख्ता अज़म रखते हैं। भारतीय मुसल्लह अफवाज और उसके सियासी आकाओं को ये बात समझ लेनी चाहिए, हर जारहती इक़दाम का जवाब तेज़, पुख्ता और भरपूर अंदाज में दिया जाएगा जो आने वाली नस्लें याद रखेंगी। भारतीय अवाम और बैनुल अक़वामी बिरादरी को झूठ बावर कराए जा रहे हैं। उन्होंने भारतीय फ़ौजी मिशन को रुस्वा किया है। कोई भी पेशावर फ़ौजी जानता होगा कि गैर ज़रूरी घमंड और बेजा बयानात जंगी जुनून को हवा दे सकते हैं। उसके नतीजे में जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम को संगीन नताइज का सामना करना पड़ सकता है। FBR ने कराची पोर्ट से अफगान ट्रांजिट ट्रेड की ट्रांसपोर्टेशन रोक देने की हिदायत जारी कर दी है, जिसके बाद तमाम कंटेनर्स टर्मिनल ने गाड़ियों पर लोड कंटेनर्स को ऑफलोड करना शुरू कर दिया है। अफगान ट्रांजिट के तमाम गेट पास मनसूख कर दिए गए। कस्टम्स हाउस कराची में DG अफगान ट्रांजिट ट्रेड का इजलास हुआ, जिसमें कस्टम्स जनरल ऑडिटर जारी कर दिया गया, जिसमें कोयटा और पेशावर में कस्टम्स स्टेशन पर मजीद कंटेनर्स खड़े करने की गुंजाइश खत्म हो चुकी है। कराची पोर्ट और पोर्ट कासिम पर क्लियरेंस भी रोक दी गई है। हुक्म नई सूरत हाल तक नाफिज रहेगा। पाक अफगान कशीदगी के बाद फैसलाबाद में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला दोबारा शुरू कर दिया गया। गुज़िश्ता 2 रोज़ में 48 अफराद को पकड़ा गया है, जिन्हें मुल्क बदर करने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। इरफानुल्लाह की रिपोर्ट। फैसलाबाद पुलिस ने एक बार फिर गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों को तलाश करके मुल्क बदर करने के लिए क्रैकडाउन का आगाज़ कर दिया है। पुलिस एहलकार रहायशी इलाकों, मार्केटों और बाज़ारों में मुश्तबा अफराद की छानबीन कर रहे हैं ताकि अफगानी बाशिंदों को वापस उनके वतन भिजवाया जा सके। ऐसे बंदे जिन्होंने अपनी कोई आइडेंटिटी शो नहीं की या जिन्होंने कोई डॉक्यूमेंटेशन शो नहीं की, वो इलीगल इधर आके रह रहे हैं, वो यानी पाकिस्तान के जो कवानीन है उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। पुलिस ने गुज़िश्ता 2 रोज़ में 47 अफगान बाशिंदों को पकड़कर डिटेंशन सेंटर मुंतकिल कर दिया है, जहां इन अफराद को मुल्क बदर करने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। अभी जैसे ही हमें नादरा की तरफ से मैनिफेस्ट लिस्ट मिलेगी, हम उस लिस्ट के मुताबिक इनको तूरखम बॉर्डर तक पुलिस की सिक्योरिटी में जो छोड़ के वो आएंगे। पुलिस के पास मौजूद मालूमात के मुताबिक फैसलाबाद में मजीद 352 अफगान बाशिंदे मौजूद हैं, जिनकी तलाश के लिए क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है ताकि जल्द अज जल्द इन अफराद को पकड़कर मुल्क बदर किया जा सके। कैमरामैन अली असलान और मोहम्मद उस्मान के साथ इरफानुल्लाह, जियो न्यूज़, फैसलाबाद। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी की नमाज जनाजा घड़ी यासीन शिकारपुर में अदा कर दी गई। वो बुध के रोज़ कराची में इंतकाल कर गए थे। उन्हें तबीयत ख़राब होने के बायस 1 माह कबल कराची के निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया था। आगा सिराज दुरानी 5 अक्टूबर 1953 को शिकारपुर की तहसील गढ़ी यासीन में पैदा हुए। आगा सिराज दुरानी ने इब्तदाई तालीम कराची से हासिल की। उन्होंने सिंध मुस्लिम लॉ कॉलेज से LLB किया।
आगा सिराज दुरानी ने 1985 में पहली बार ज़ियाउल हक के दौरे हुकूमत में इंतखाबात में हिस्सा लिया। उन्होंने 1988 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार की और इंतखाबात में कामयाबी समेटी। 1990 में उन्हें कुछ अरसा कबल जेल भी गुजारना पड़ी। आगा सिराज दुरानी 2013 में सिंध असम्बली के स्पीकर मुंतखब हुए थे। आगा सिराज दुरानी ने सोगबारान में एक बेटा, 4 बेटियां और 2 बेवाएं छोड़ी हैं। दुनिया भर की तरह लोधरा में भी वर्ल्ड फूड डे मनाया गया। लोधरा पब्लिक स्कूल में मुनक़िदा सेमिनार में तालिबात को बेहतर खुराक और बेहतर मुस्तक़बिल के उन्वान से आगाही दी गई। रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ रजब अली मिर्जा। लोधरा पब्लिक स्कूल में वर्ल्ड फूड डे के हवाले से मुनक़िदा सेमिनार में तालिबात को खुराक की अहमियत, भूख के खात्मे और ग़िज़ाई वसाइल के मौसर इस्तेमाल के हवाले से आगाही दी गई। सेमिनार में इस बात पर रोशनी डाली गई, अगर हम सब एक साथ मिलकर ग़िज़ाई निज़ाम को बेहतर बनाएं, खुराक के ज़िया को रोकें और एक दूसरे का एहसास करें तो दुनिया से भूख और ग़िज़ाई किल्लत का खात्मा मुमकिन है। तकरीब की मेहमान ख़ुसूसी डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर लुबना नज़ीर ने कहा कि वर्ल्ड फूड डे हमें एहसास दिलाता है कि अगर हम सब मिलकर खुराक के ज़िया को रोकें और ज़रूरतमंदों तक मुतवाज़न ग़िज़ा पहुँचाएँ तो कोई भी शख्स भूखा न रहे। आज बच्चियों से खिताब किया गया, उनको इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से खाने की अहमियत बताई गई। माहिर ग़िज़ाइयात अमन अली का कहना था कि दुनिया में खुराक की कमी नहीं बल्कि तकसीम का मसला है। आज वर्ल्ड फूड डे है और लोधरा पब्लिक स्कूल में तालिबात को ये बताया गया है कि ग़िज़ा के तहफ़्फ़ुज़ को कैसे यकीनी बनाया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक हम हर साल खुराक का तीसरा हिस्सा ज़ाया कर देते हैं। सेमिनार के इख्तिताम पर तालिबात ने फूड फॉर ऑल के उन्वान से हल्फ उठाया कि वो खुराक के ज़िया को रोकने और बेहतर मुस्तक़बिल के लिए इज्तिमाई कोशिशों का हिस्सा बनेगी। रजब अली मिर्जा, जियो न्यूज़, लोधरा। जनूबी वज़ीरिस्तान लोअर के वाहिद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल वाना के मुलाज़मीन गुज़िश्ता 10 माह से तनख्वाहों से महरूम हैं, जबकि अस्पताल के फंड्स भी ताहाल जारी नहीं हो सके। मकामी कबाइल और अस्पताल के अमले ने सूबाई हुकूमत से फंड्स की फौरी बहाली का मुतालबा किया है। रिपोर्ट कर रहे हैं आदम खान वज़ीर। ये है जनूबी वजीरिस्तान लोअर के 6 लाख से जायद आबादी का वाहिद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल वाना। जदीद इमारत, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन फंड्स जारी न होने से इलाज और मालजे की सहूलियात मुतासिर हो रही है। साल 2022 में सूबाई हुकूमत ने अस्पताल को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप माहिदे के तहत अस्पताल का इंतजाम एक ऑर्गेनाइजेशन के सपुर्द किया था, लेकिन इंतजामी शराकत अब अस्पताल के अमले और मरीजों दोनों के लिए मुश्किलात का बायस बन चुकी है। मम्मी के साथ आया हूँ, मम्मी का डायलिसिस इधर होता है हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में। डॉक्टरों की 10 महीने से तनख्वाह नहीं है। मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि इनकी तनख्वाह खोली जाए, इसलिए कि अगर ये हॉस्पिटल बंद हो जाए तो हम मम्मी को कहाँ लेके जाएंगे। यहाँ इलाज की सहूलत है मगर अमले को तनख्वाहें न मिलने से सर्विसेज मुतासर हो रही है। हुकूमत को जल्द फंड्स जारी करने चाहिए। DHQ अस्पताल के हेल्थ मैनेजर का कहना है कि अस्पताल के 33 करोड़ रुपए के वाजिबुल अदा फंड्स गुज़श्ता 10 माह से इल्तिवा का शिकार है, जबकि डॉक्टरों को भी कई माह से तनख्वाहें नहीं मिली है। मर्फ को DHQ हॉस्पिटल वाना के लिए पिछले 10 माह से फंड रिलीज नहीं हुए, जिसकी वजह से तनख्वाहें बंद है। डॉक्टरों को उनकी तनख्वाहें नहीं मिल रहे हैं, मेंटेनेंस, दवाइयों के लिए मुश्किलात है। हमारी तनख्वाहें 10 माह से बंद है, स्टाफ माली मुश्किलात में है। हम मरीजों के जज्बे से काम कर रहे हैं, लेकिन ये सूरत हाल ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं की जा सकती। हुकूमत की जानिब से फंड्स की बंदिश ने पूरे निजाम को मुतासिर कर दिया है। हमने हुकाम को मुतादिद बार आगाह किया मगर कोई अमली इक़दाम नहीं हुआ। लिहाजा चीफ सेक्रेटरी साहब, सेक्रेटरी हेल्थ और हेल्थ फाउंडेशन को गुजारिश करूंगा कि हमारे फंड जल्दी से जल्दी रिलीज करा दे ताकि मरीजों की मुश्किलात दूर हो सके। फंड्स की बंदिश के बायस अस्पताल के बेशतर शूबे मुतासिर होने का अंदेशा है, जबकि अमले को खदशा है कि अगर पर वक्त अदायगियां न हुई तो अस्पताल की खिदमत मजीद महदूद हो सकती है। मकामी वजीर कबाइल और सियासी रहनुमाओं ने चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा और हेल्थ फाउंडेशन से अपील की है कि अस्पताल के फंड्स और मुलाजमीन की तनख्वाहें फौरी तौर पर जारी की जाए। आदम खान वजीर, जियो न्यूज़, जनूबी वजीरिस्तान लोअर। ICC विमेंस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम इंग्लैंड के खिलाफ शानदार परफॉर्मेंस के बावजूद बदकिस्मत रही। बारिश पाकिस्तान की तारीखी जीत की राह में रुकावट बन गई। इंग्लैंड ने 9 विकेट पर 133 रन बनाए। डकवर्थ लुइस मेथड के तहत पाकिस्तान को 31 ओवर्स में 113 रन का हदफ मिला।
ओपनर्स ने 6.4 ओवर्स में 34 रन बनाए थे कि बारिश शुरू हो गई और मैच खत्म करना पड़ा। दोनों टीम्स को एक एक पॉइंट मिल गया। विमेंस वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश की टीम्स आज विशाखापट्टनम में मद्दे मुकाबिल होंगी। वर्ल्ड कप के दिलचस्प मुकाबले जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। कोलंबो में कप्तान फातिमा ने टॉस जीता और बॉलिंग की। इंग्लैंड की बैटिंग लाइन पर पहली जर्ब डियाना बेग ने लगाई। फिर कप्तान फातिमा ने एक एक करके 3 इंग्लिश बैटर्स को पवेलियन की राह दिखा। सादिया इकबाल ने भी कप्तान का खूब साथ निभाया, स्पिन का जादू दिखाया। इंग्लैंड की 7 विकेटें 78 रन पर गिर चुकी थीं। स्कोर 79 हुआ और बारिश शुरू हो गई और जब खेल दोबारा शुरू हुआ तो इनिंग्स 31 ओवर्स तक महदूद कर दी गई। चार्ली डेन ने तेजी से 33 रन बनाए। इंग्लैंड का स्कोर मुकर्ररा 31 ओवर्स में 9 विकेट पर 133 रन रहा। फातिमा सना ने 4, सादिया इकबाल ने 2, डियाना बेग और रामीन शमीम ने एक विकेट हासिल की। पाकिस्तान को डकवर्थ लुइस मेथड के तहत 113 रन का हदफ मिला। मुनीबा अली और उमैमा सुहेल ने 6.4 ओवर्स में 34 रन बनाए थे कि बारिश शुरू हो गई और मैच खत्म करना पड़ा। दोनों टीमों को एक एक पॉइंट दिया गया। विमेंस वर्ल्ड कप में आज ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश की टीमें विशाखापट्टनम में मद्दे मुकाबिल होंगी। विमेंस वर्ल्ड कप के दिलचस्प मुकाबले जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। एशिया पैसिफिक गोलबॉल चैंपियनशिप इस्लामाबाद में शुरू हो गई। इवेंट में 11 ममालिक की टीम्स हिस्सा ले रही हैं। चैंपियनशिप 22 अक्टूबर तक जारी रहेगी। पाकिस्तान ब्लाइंड स्पोर्ट्स फेडरेशन के ज़ेरे एहतमाम चैंपियनशिप इस्लामाबाद में शुरू हो गई। इवेंट में 11 ममालिक की टीमें शरीक हैं। इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खुसूसी सेनेटर दनीश कुमार थे, जबकि कज़ाकिस्तान के सफ़ीर, ईरान के पॉलिटिकल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी IPC मुहिउद्दीन वानी भी शरीक हुए। तकरीब का आगाज़ टीमों के मार्च पास्ट से हुआ। दनीश कुमार ने तकरीब से खिताब में कहा कि पाकिस्तान एक पुरअमन और मोहब्बत करने वालों का मुल्क है। मेहमान यहाँ से खुशगवार यादें लेकर जाएंगे। लियाकत जिम्नाजियम में चैंपियनशिप 22 अक्टूबर तक जारी रहेगी।